मीटिंग। मेरा नाम बबलीन है, मेरे नाम श्वेता मैम हैगे है। तो हर सैटरडे की तरह ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨया ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਮੋਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो लास्ट टाइम ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਨਸੀਨ ਪੈਟਰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਨਸੀਨ ਪੈਟਰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਓਵਰ ਥੀਸ ਇਅਰਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਨਸੀਨ ਪੈਟਰਨਸ ਇਨ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਇਨ ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਵਡ ਵਨ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਕਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਰ ਦੀ। ਐਂਗਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਨਸੀਨ ਪੈਟਰਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਪਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਪਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ that is important। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਲਦੀ ਕੋਪਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਅਨਹੈਲਦੀ ਕੋਪਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆਰ unconscious psychological strategies that people use to protect themselves from anxiety, stress or uncomfortable thoughts and feelings। यानी कि डिफेंस ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲਡ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਵਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म्स डेवलप करो, बनते कब, किस तरह से ये हमारे अंदर आते हैं और कब आते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म typically develop in childhood as a response to emotional discomfort, fear or stress। They emerge when a child encounters situations they do not have the skills to handle। These behaviors as a way to avoid pain, rejection or feeling of inadequacy। कहने का मतलब है कि एज अ चाइल्ड जब बच्चा छोटा होता है उसको कोप नहीं करना आता, उसके अंदर स्किल्स नहीं है, उसको स्किल्स नहीं है मैंने ये वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, मैंने क्या करना है इस सिचुएशन में, मैंने कौन सा बिहेवियर देना है इस सिचुएशन में। तो बचपन में ही डिफेंस मैकेनिज्म्स डेवलप हो जाते हैं। 12 साल की उम्र तक ये डिफेंस मैकेनिज्म चलते हैं क्योंकि एक बच्चा भी अपनी पेन से बचने के लिए, उसको कोई रिजेक्ट ना कर दे उस चीज से बचने के लिए कुछ डिफेंसेस तैयार करता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इस एग्जाम्पल में है अ चाइल्ड फेसिंग हार्श क्रिटिसिज्म में डेवलप डिनायल मतलब मानना ही ना, स्वीकारना ही ना। आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग टू प्रोटेक्ट देयर सेल्फ स्टीम। वो सीधा ही कहता है, अगर उसने गलती करी भी है तो कहता है मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। ये आपको लग रहा है
ये फलाना बंदा मुझे फंसाने के लिए कह रहा है, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। ये बंदा ना, ये जो दूसरा बच्चा है ना मम्मा, ये मेरे से जेलसी करता है, ये जेलस है मेरे से, मैं अच्छा पढ़ता हूँ या मैं अच्छा खेलता हूँ इसलिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब टोटली डिनाई कर देना कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है या मैंने कोई गलत बिहेवियर करा है। Then is a child feeling helpless may use projection. It's not my fault, it's theirs. To shift blame to others. Blame game में आ जाना, प्रोजेक्ट कर देना किसी और तरीके पे कि मैंने तो कुछ ऐसा करना ही नहीं था, वो फलाने बंदे ने ना उकसाया मुझे, या उसने मुझे इतनी प्रॉब्लम क्रिएट की जिसकी वजह से मुझे ऐसा कहना पड़ा, बोलना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में लड़ाई हो गई है और आपको टीचर बुला के कहती है कि आपका बच्चा ना गालियां दे रहा था, ही वॉज गेटिंग अब्यूजिव इन द क्लास। तो बच्चा प्रोजेक्ट करता है कि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, उसने, दूसरे लड़के ने मुझे प्रोवोक किया, उसने पहले गाली निकाली, उसने गाली निकाली इसलिए मैंने जवाब में गाली निकाली। जब उसने गाली निकाली थी ना, उस टाइम पे टीचर नहीं थी वहां पे। अचानक जब मैं निकाल रहा था वापस तो टीचर आ गई, इसलिए मैं फंस गया। तो अपनी जो डिफेंस दे दी उसने कि मैं तो गलत हुई नहीं, दूसरे को प्रोजेक्ट कर दिया इसको। थर्ड एग्जाम्पल में बताया है रैशनलाइजेशन में था, when a child makes excuses to justify mistakes to avoid punishment। रैशनलाइजेशन होता है दलीलें देना, दलील देना, अपनी वकालत करना कि मुझे पनिशमेंट ना मिले, इसलिए अपनी कोई ऐसी दलील दे देना कि फैमिली या पेरेंट्स मान जाएं कि हाँ ठीक है, तुम गलत नहीं थे, इट्स ओके, अगले की भी उतनी गलती थी। तो इतनी ब्यूटीफुली ये डिफेंस मैकेनिज्म काम करते हैं ताकि हम अपने, जो अपना एक शील्ड बना के रखते हैं। किसी किसी हद तक, पहले किसी हद तक माना जाता था कि डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि अपने स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए बचपन में जब हम वो करते हैं तो उसको किसी हद तक थोड़ा बहुत सही माना जाता है कि इट्स ओके। क्योंकि क्या कहा जाता है कि 12 साल के बच्चे को अभी इतनी अकल नहीं है, अभी उसका दिमाग डेवलप नहीं हुआ, अभी शायद उसको अपना, नॉर्मली क्या कह देते हैं पेरेंट्स, इन्हें ना अपना चंगा बुरा नहीं पता, हजे हजे छोटा है ना, हजे बहुत छोटा है, हजे इन्हें अपना चंगा बुरा नहीं पता, चलो इट्स ओके, इन्हें माफ कर देने या तुसी इन्हें माफ कर दो। तो उस टाइम तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बच्चा टीन एज में आया या अपने अडल्टहुड में आया, जब वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है, वो डिफेंस मैकेनिज्म करेक्टर डिफेक्ट्स में बदल जाते हैं और वो एक गंभीर बीमारी का रूप लेते हैं, स्पेशली इन एडिक्शन। वो फिर और फलते फूलते हैं और बीमारी भी हमारी और फलती फूलती है। इतना समझ आ गया सबको? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग दिस? जी मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे मैम बोल रहे हैं कि हम सुरक्षा कवच अपने ये डिफेंस मैकेनिज्म्स जो हैं वो सुरक्षा कवच की तरह यूज करते हैं। अब सुरक्षा मुझे क्यों चाहिए? या तो मेरे ऊपर कोई अटैक हो रहा है तो मुझे उसको डिफेंस करने के लिए चाहिए, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई गलत चीज कर दी है तो उसको छुपाने के लिए मुझे सुरक्षा चाहिए। सो हमारे यहाँ पे क्या है कि जैसे अभी मैम ने बड़ी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि जो बच्चे हैं 12-13 साल तक, ये जो उनके डिफेंस मैकेनिज्म है ये यूज करते हैं। जैसे किसी ने स्कूल नहीं जाना, मम्मा मेरे पेट दर्द हो रही है, यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, होता है ऐसे, हाँ, कि मम्मा मेरे हो कह रहे हैं, हाँ होता है। सो ये क्या है, उनका एक टेक्निक है टू अवॉइड अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन अनकॉन्शियसली, क्योंकि वो बच्चे हैं, है ना। सो वो क्या कर रहे हैं, एक वो बहाना लगा रहे हैं, एक दलील दे रहे हैं, जो मैम ने अभी बताया रैशनलाइजेशन, कि मेरे पेट दर्द हो रही है तो माँ कहेगी कि हाँ चलो जी ठीक है मत जाओ स्कूल। कहीं ना कहीं अभी मम्मी को पता भी होएगा कि शायद आज इस सब्जेक्ट का टेस्ट है, इसलिए ये बहाना लगा रहा है। बट द थिंग इज कि हम 12-13 साल की उम्र तक ये जो डिफेंस है इसको इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं बच्चे हैं। पर अब ये जैसे आप ये देख रहे हो साइकिल, मैम वो साइकिल, तो अभी आप ये सर राहुल सर थोड़ा सा जूम करके हम अपने ऑनलाइन जो हैं व्यूअर्स उनको भी दिखाएंगे। तो ये इंडिविजुअल है जैसे, और अनकंफर्टेबल रियलिटी इवेंट्स हैं।
अब जैसे मैंने एग्जांपल दी बच्चे की कि अनकंफर्टेबल उसके लिए क्या है कि स्कूल में अगर टेस्ट है और उसको नहीं आता, तो वो उसके लिए बड़ा स्ट्रेसफुल एक इवेंट है जिसको अवॉइड करने के लिए उसने सिंपली झूठ बोला, ठीक है? या उसने एक ऐसा बहाना लगाया जिससे कि उसकी मदर कन्विंस हो जाए। सो और ये उसका और वो बहाना उसने क्यों लगाया? क्योंकि उसको फ़ियर है। फ़ियर क्या है कि मेरी एग्ज़ाम में तैयारी नहीं हुई, मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। अगर मैं फ़ेल हो गया, पहली बात मेरी इंसल्ट हो जाएगी क्लास में, दूसरी बात मुझे पनिशमेंट मिलेगी या तो टीचर से या पेरेंट्स से। जो रिजेक्शन की फीलिंग है ना, हम ये समझेंगे, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन इतना रहता है, चाहे पेरेंट्स ने बोला ही ना होए कि बेटा तुम्हें 100% चाहिए या तुम्हें 90% चाहिए या तुम्हें 70% चाहिए, लेकिन वो अंदर से ही उस बच्चे के हमें लगता है बच्चों को कोई स्ट्रेस नहीं होता, हमें लगता है बच्चे के मन में शायद थॉट्स नहीं आते। 4 साल के बच्चे के मन में थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे हमें एंग्जाइटी होती है, हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमें फोबियाज होते हैं, ऐसे ही छोटे से बच्चे के मन में भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो ये जो मैम बता रहे हैं, क्यों उसने झूठ बोला? फियर ऑफ रिजेक्शन से बचने के लिए। जो भी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होगी, एक ह्यूमन बीइंग के लिए अनकंफर्टेबल फीलिंग्स, अब खुशी वाली फीलिंग तो मेरे लिए अनकंफर्टेबल नहीं होएगी ना। मेरे लिए कौन सी इमोशंस अनकंफर्टेबल है? स्ट्रेस, एंजाइटी, गिल्ट, रिजेक्शन, है ना? ये सारी चीजें मेरे लिए अनकंफर्टेबल है। इनको मैं जितना ज्यादा हो सकता है अवॉइड करने की कोशिश करूंगी और उसके अराउंड एक सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश करूंगी कि ये फीलिंग्स मेरे तक ना आए, क्योंकि टेस्ट में अगर गलत नंबर आ गए, मम्मी ने मुझे बोल दिया, मुझे शेम भी होएगी, मैं पढ़ी नहीं, मैं गिल्ट होगा, स्ट्रेस होगा, फिर शायद रिजेक्शन, मम्मी मेरे को उतना प्यार ना करे। सो ये जो सारी फीलिंग्स है उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, सिंपली रैशनलाइज झूठ बोल दिया कि हाँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब जब ये इंसान, जब भी ये इंडिविजुअल 12-13 साल की उम्र तक ऐसे कुछ स्ट्रेसफुल जो सिचुएशंस हैं उनको अवॉइड करने के लिए जब हम ये डिफेंस यूज करते हैं तब तक तो ठीक है। पर अब क्या हुआ, जब आप ये सर्कल में देखोगे, अनकंफर्टेबल रियलिटी इवेंट में डिजीज भी आ गई। जब हमारा लव्ड वन की जिंदगी में डिजीज आ गई, ड्रग एडिक्शन आ गई, तो वो रोज ही अनकंफर्टेबल होने लग गया। ऐसा ही है ना? अब बच्चे का टेस्ट तो चलो शायद 15 दिन में एक बारी या 2 महीने में एक बारी होगा, या उसने झूठ बोला कुछ ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए। जब डिजीज आ गई तो हमारे लव्ड वंस की जिंदगी में रोज ही वो स्ट्रेस आना शुरू हो गया, क्योंकि रोज उनको अपने माँ बाप को फेस करना पड़ता था। रोज उनके माँ बाप बोलते थे तू ज्यादा क्यों सो रहा है, तेरी आंखें क्यों लाल है, लेट आ रहे हैं तो बहानेबाजी चाहिए। अब क्या हो गया कि वो जो डिफेंस मैकेनिज्म हम कभी कभी अपने आप को सेव करने के लिए यूज करते थे, अब वो क्या हो गया है, ना चाहते हुए मुझे रोज ही यूज करने पड़ रहे हैं। अब हमारा लव्ड वन, वो जो डिफेंस मैकेनिज्म हमें एक सेवियर की तरह, कि हाँ हमने स्ट्रेसफुल सिचुएशन को सेव करना था, अपने आप को सेव करना था उस सिचुएशन के लिए, अब वो चीज वो रोज से मतलब अपने आप में यूज करना शुरू हो गया। तो उसके बिहेवियर का ये एक बहुत बड़ा एक पार्ट बन गया, जो एक करेक्टर डिफेक्ट बन गया। मतलब उसकी पर्सनैलिटी, अब जहां उसको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है वो वहां भी झूठ बोल रहा है। अब जहाँ उसको कोई बहाने लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ भी बहाने लगा रहा है। जहाँ चीज़ छुपाने की उसको ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ भी ची मतलब छुपाई जा रहा है वो बातें भी। क्यों? क्योंकि अब उसका वो पैटर्न बन गया, करैक्टर डिफेक्ट उसकी पर्सनैलिटी में, जो वो डिफेंस मैकेनिज़्म कभी-कभी आने थे, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करने के कारण वो उसकी पर्सनैलिटी का ही पार्ट बन गया। ठीक है? पहले वो इतना झूठ नहीं बोलता था। अब आप लोग बोलोगे कि अब हम बोलते हैं यहाँ पे कि हमारे जो लव्ड वन्स हैं, वो जब-जब मुँह खोलेंगे वो झूठ बोलेंगे। आप देखते होगे अपने लव्ड वन कि मतलब ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਕहेंगे ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਗੜੰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਬਲੇਮਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਲਵਡ ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨਾਇਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਨਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। इसको ब्लेमिंग कहते हैं, ब्लेम करना।
ठीक है? कि आज जो मेरी कंडीशन है ना, ये आज जो मैं नशे में हूं ना, ये आपके कारण है। ब्लेम कर देना और हमेशा उस ट्रैप में फंसा देना, गिल्ट में ले आना फैमिली को, पूरा ब्लेम करके कि मैंने तो ठीक रहना था, आपने मुझे मेरे मनपसंद का कॉलेज नहीं करवाया, आपने मुझे मेरे मनपसंद की जो लड़की थी उससे शादी नहीं कराई, आपने अपने पसंद की लड़की से शादी करा दी, मेरी जिंदगी तबाह होगी इसलिए मैं नशे में चला गया। आपने मुझे उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, आप लोग बिजी थे अपने पैसे कमाने में, अपने कामकाज में, अपने जॉब्स में, मेरा बचपन आपने वेस्ट कर दिया। तो ये ब्लेम ब्लेम जो करता है ना कि आपके कारण मैं हूं, ये एक उसका डिफेंस है। दूसरा पॉइंट है जो हमारे लव्ड वंस करते हैं फैमिलीज के साथ, अभी हम इसके बाद फैमिलीज पे भी आएंगे। तो लव्ड वंस क्या कहते हैं कि मेरे नाल वाले देखो कित्थे दे कित्थे पहुंच गए, ਤੁਹਾਡੀ वजह नाल मैं ਇੱਥੇ ही रह गया। अपने आप को कंपैरिजन में लेके आते हैं सो दैट हमारी फैमिलीज गिल्ट में चले जाए कि शायद मैं ही अपने लव्ड वन नाल, मैं अपने बच्चे नाल कुछ गलत करता, शायद मेरी परवरिश या ਉਹਦੀ टेक केयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਤੀ, ਹਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੁਖਮਨ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚਿੱਟਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਜੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਵਾਈ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਨਹਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਓ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੰਜੂਸ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਡਿਨਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਘੁੰਮਣ ਘਮੇਰੀ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਮ, ਗਿਲਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਗਰੋਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਏ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਪਲੂਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਿਊਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਘਟਾ ਲਾਂਗਾ, मैं आप ही छाड़ देना है, मैं आप ही घटा लाऊंगा, मैं घटा के ठीक कर लेना है। मैंने हुन अपने हाल पे छाड़ दो। ये जो कहते हैं ना पीछे हो जाओ, छाड़ रहन दो, इसका मतलब है वो कह रहे होते हैं मैनू हुन अपने हाल च छाड़ दो, तुसीं करना जो करना सी, तुसीं मेरा बेड़ा गर्क करता, हुन मैनू अपने हाल ते छाड़ दो, हुन मैं आपे घटा के बंद करांगा, आपे डॉक्टर को जावांगा, आपे दवाई लवांगा। ये उनका नेक्स्ट डिफेंस होता है। ऐसे हुआ है कभी? ऐसे हुआ है? ठीक है। नेक्स्ट ये है कि जब अब उनको ले आए हैं ट्रीटमेंट में, अब वो आ ही गए हैं, जब आप इनको यहाँ पे हर्मिटेज ले आए हो, तो फिर आपको ये स्टेटमेंट देते हैं तुसी ये भी इन्ना खर्चा करता,
ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਜੇ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਕ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਛੱਡਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ एनिवर्सरी ਤੇ या अपने बर्थडे ਤੇ मैं पक्का ही छाड़ देना सी। नेक्स्ट नेक्स्ट उनका जो होता है ना डिफेंस, वो ये आ जाता है कि मैंने छोड़ ही देना था, आपने ਐਵੇਂ पंगा पा दिया। अब एक और डाउट क्रिएट हो गया फैमिली के मन में। ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਜਰਾ 10,000 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਛੱਡਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ इस चीज च करने ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ और ਜਾਂਦੇ। यहाँ पे क्या होता है मैम, यहाँ पे क्या होता है कि जब पेशेंट फर्स्ट मंथ में आता है ना, तो इतना अच्छा बिहेवियर करना शुरू हो जाता है, गुडी 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 इनिशियली 1-2 फैमिली मीटिंग, क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल है, हम पहले हफ्ते में टच एंड गो कराते हैं। जब पेशेंट तैयार नहीं होता तो फैमिलीज को बुलाते हैं टच एंड गो के लिए। सेकंड हमारा वीक होता है 15 डेज टू 21 डेज में, हमने डाटा प्रेजेंट करना होता है, डाटा इंटरवेंशन करना होता है कि बीमारी ने क्या रंग रूप दिखाया, ताकि पेशेंट को पता लगे, इनसाइट अवेयरनेस आए। तो पेशेंट क्या करता है, पहले हफ्ते और 15 दिन के बीच में इतना अच्छा बिहेव करता है ना फैमिली के साथ कि फैमिली कहीं ना कहीं फिर कन्विंस हो जाती है एक महीने में। ये बीमारी कन्विंस करने की है, आपको मनाने की है। और फैमिली को फिर पेशेंट कहता है, मैं सच्ची दसा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਹੀ ਆਇਓ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨਾ, ਬਾਅਦ। ਬਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਪਵਾ ਲਓ, ਸਾਰੀ 100 ਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਜੇ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਸ, बहुत ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। अप्रीशिएट करेंगे, ऐसे बहुत सारे होते हैं कि ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਹੈਲਪ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ये ना आपको बता दे, जब आपका लव्ड वन ये कहने लगे ना, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, बड़े ध्यान ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੈ और बहुत कुछ ਵਧੀਆ कर रहे हैं। इसका मतलब है पेशेंट की डिनायल है अभी। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ नहीं ਹੁੰਦਾ, पेशेंट ਤੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੀਹੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ है। चाहे उसको हमने कंफर्ट जोन दिया हुआ है, चाहे उसको एसी है, चाहे उसको अच्छी बेडिंग है, चाहे उसको खाना अच्छा मिल रहा है, चाहे हम लव रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पर ये याद रखेंगे, अगर आपका पेशेंट ये कह रहा है मेरा बहुत बढ़िया दिल लगा हुआ है और सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो उसके पीछे ही एक कहानी चल रही है। उसने एक दिन वो गोली चला देनी है और कह देना है हो गया हूं मैं ठीक हूं, ले जाओ, तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर थे। तो ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स है, ये 4 है। और ये जो सबसे चौथा है ना, 4th नंबर वाला, ये सबसे डेंजरस है, सबसे डेंजरस, क्योंकि ब्लेम उसने घर पे कर लिया। उसने ये कह दिया कि मेरे साथ वाले कहाँ पहुंच गए, आपको गिल्ट ट्रिप में ले आए। उसने ये कह दिया कि अब आप पीछे हो जाओ, मैंने छोड़ देना है। जब यहाँ पे आके वो आपको ये कह रहा है कि मैंने तो छोड़ ही देना था, आई रियली लव यू अ लॉट, आई रियली केयर फॉर यू अ लॉट, इसका मतलब है वो इतनी स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, इतनी स्ट्रॉन्ग डिनायल है कि वो बस रास्ता ढूंढ रहा है बाहर निकलने के लिए। इसको हम समझेंगे और करना क्या चाहिए। सो ये चीजें तो हम अपने पेशेंट में साफ देखते हैं, जैसे कि सर ने भी बोला कि हमारे बच्चे ने ऐसे किया। अब फैमिलीज, क्योंकि हम यहाँ फैमिली ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, फैमिलीज क्योंकि बहुत सारे करेक्टर डिफेक्ट्स डिफेंस मैकेनिज्म्स फैमिली भी यूज करती है, तो क्या हमने भी जब वो ट्रीटमेंट में भी आ गए, हम ऐसे सिचुएशंस, हम ऐसे स्टेटमेंट्स यूज करते हैं कि मेरा देखो की हाल बनाता है, तुसी फैमिलीज करती हैं वो ब्लेम आज, क्योंकि क्या है, क्योंकि हम इतने को डिपेंडेंट हो जाते हैं, को डिपेंडेंट मतलब हम रोगी हो जाते हैं। अब अगर मेरा लव्ड वन कोई बीमार है तो मैं ये बोलती हूँ कि तेरी वजह नाल देख मैं भी बीमार हो गया, मेरे को शुगर होगी, मेरे को शुगर होगी, मेरा बीपी बढ़ गया, मेरे को तो शुगर थी ही नहीं, मेरा तो बीपी बढ़ता ही नहीं था, मैं देख मेरी रातों की नींदरें उड़ गई हैं, मुझे डिप्रेशन आ गया, तेरी वजह से हुआ है।
जे तू नशा ना करदा ते अज मेरा ये हाल ना होंदा। कभी हम फैमिलीज बोलती हैं पेशेंट्स को? और वो क्यों बोलती हैं? क्योंकि हम भी अपनी जो प्रॉब्लम है, जो अपना कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, हम ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरी भी स्ट्रेस के लिए जो कोपिंग स्ट्रैटेजी है, वो ठीक नहीं है। हमारे लव्ड वन की तो ठीक है ही नहीं है, उसने भी अनप्लेज़ेंट, अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स को फेस करने के लिए उसने भी डिफेंस मैकेनिज़्म्स का साथ लिया, ब्लेमिंग का साथ लिया। हम भी तो वही कर रहे हैं। हम भी तो वही कर रहे हैं क्योंकि मेरी भी कैपेसिटी नहीं है, मैंने भी स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखा नहीं है। मैंने भी अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स को कैसे हेल्दी वे में कोप करना है वो सीखा नहीं है, तो मैं भी ब्लेमिंग करने लगी। हाँ जी मैम, यू वर शेयरिंग समथिंग। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। मैं ये शेयर करना चाहती थी, जैसे आपने इनिशियली पूछा कि थोड़ा सा पीछे, इनिशियली ये पूछा कि ब्लेमिंग, आपको पेशेंट ने कभी बोला है कि ब्लेम किया है कि मुझे ये करना था आपने नहीं करने दिया। वो तो बहुत बार हुआ है, हुँ, सो मेनी टाइम्स। लेकिन उसमें जैसे आप कहते हो कि गिल्ट आता है, गिल्ट नहीं आया, हेल्पलेसनेस जरूर हुई है हुँ। उस टाइम पे, हेल्पलेसनेस क्योंकि इज़ अगेन अ वेरी अनकम्फर्टेबल फीलिंग ना। या सो वी वर टॉकिंग जनरल में हम अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वो आपके अंदर क्या लेके आए। क्योंकि हमें पता था कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो उसके बेनिफिट के लिए ले रहे हैं, हुँ, लेकिन इसलिए गिल्ट नहीं आया, हुँ, लेकिन हेल्पलेसनेस जरूर आई कि ये सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ रही है और अब हम क्या करें। हुँ, हुँ, दूसरी बात जो आपने अभी लास्ट में बोली है कि डिनायल रहता है, वो डिफेंसिव मैकेनिज्म है। वो कहता है कि जब गुडी गुडी बातें करता है पेशेंट, तो इसका मतलब उसका डिनायल है। तो ये एक तरह की मास्किंग हो गई। अब उस मास्किंग को हम कैसे रिकॉग्नाइज करें? उसमें पहले पहले सवाल का जवाब ये है, ये जो आप कह रहे हो ना कि गिल्ट नहीं था आया पर हेल्पलेस हो गए थे, जैसे सर ने भी बोला, इसका मतलब है उसकी बीमारी ने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ की है ना आपने। वो जो हेल्पलेसनेस आई है, तो जब हमें फर्स्ट टाइम पता लगा, किसी से भी XYZ किसी से भी पता लगा या हमने खुद देखा कि हमारा पेशेंट एडिक्शन में है, तो पहला सवाल क्या आता है फैमिली के मन में? मेरे तो की कमी रहेगी। इतना अच्छा हमारा फैमिली एनवायरनमेंट है, या इतना हमने प्यार किया अपने बच्चे को, हमारे घर में दूर दूर तक ऐसी कोई थी नहीं इल्लत, या हमने अपने बच्चे की परवरिश इतनी अच्छी की, हमसे कमी क्या रह गई? तो ये जो आप कह रहे हो कि गिल्ट नहीं आया मुझे, पर मैं अनकंफर्टेबल हो गई और कहीं ना कहीं मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि हमने तो ठीक डिसीजन किया था ना। ये क्यों ऐसे बोल रहा है फिर? कोई माँ-बाप अपने बच्चे के लिए गलत डिसीजन नहीं करता, तो ये क्यों ऐसे बोल रहा है? वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो बीमार है, वो उसका डिफेंस है, यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो नेक्स्ट सर्कल में आ गया हुआ है जिसमें बीमारी है, उसकी अपनी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स है, साथ में बीमारी है, उसको उसको कोप करने के लिए वो वाले डिफेंसेस यूज कर रहा है। सेकंड थिंग, जब आप कह रहे हैं कि जब हम आपको बोल रहे हैं कि इतना गुडी-गुडी है, तो वो इमोशनल मास्किंग कर रहा है, तो वो आपको बता कौन रहा है? आपके थेरेपिस्ट साथ में आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपके थेरेपिस्ट देखिए, जब हमारे पास पेशेंट रहते हैं सुबह से शाम तक 3 महीने, 100 दिन बहुत होते हैं, तो हमें उनका इन आउट सब पता लग जाता है कि ये कब ये अब चापलूसी कर रहे हैं, कब ये मैडम की तारीफ कर रहे हैं, कब ये कुछ ऐसा कर रहे हैं कि इनको अब कुछ ना कुछ हमसे फेवर चाहिए कहीं ना कहीं। तो हम टाइम टू टाइम फैमिली को साइको एजुकेट करते रहते हैं कि दिस कैन बी पार्ट ऑफ इमोशनल मास्किंग। क्यों मैम, आप जब आए थे टच एंड गो के लिए, आपको मैंने सेकेंड या थर्ड मीटिंग में बोल दिया था कि ये जो गुडी गुडी बिहेवियर है, दिस इज नॉट गुड। इंटरनली ही इज प्लानिंग टू रन अवे, ही इज मेकिंग अ प्लान विद सम अदर स्टूडेंट कि भागा कैसे जाए। तो वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट, हमने आपको रियल पिक्चर बतानी है, रियलिटी बतानी है कि क्या है, कैसे, और उसको कैसे मैनेज करना है। दिस इज इम्पोर्टेंट। और ये जो अभी हमने बात की कि जैसे हम ब्लेम करते हैं पेशेंट को कि मेरा बीपी नहीं सी वधना, मैनू शुगर दी बीमारी नहीं सी होनी, ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ डिप्रेशन ਹੋਈ है या ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ भी दवाइयां खानियां पै गई हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। सेकेंड चीज है
कि हम भी अपने लव्ड वन को बोलते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं। तेरी भैन देख डॉक्टर बन गई है, तेरा जीजा देख कितना कामयाब है, किथे है, तेरा दूसरा ब्रदर देख कहाँ का कहाँ पहुंच गया है। व्हाट आर यू डूइंग? तुमने हमें क्या दिया जिंदगी में? तुमने हमें बेइज्जती के अलावा कुछ भी नहीं दिया। तुम्हारे साथ वाले बच्चे पढ़ के बाहर पहुंच के कोई डॉक्टर लग गया, कोई इंजीनियर लग गया, हम भी कंपैरिजन करते हैं। हम और कहीं नहीं तो विद इन फैमिली कंपैरिजन करना शुरू हो जाते हैं कि तुम्हारे बहन भाई देखो कहाँ पहुंची है, वो देखो कितने रिस्पेक्टफुल है, तुम क्या कर रहे हो? तो हम भी कहीं ना कहीं उस चीज को यूज करते हैं, हम ना चाहते हुए। मैं अब क्या कह रही हूँ, डिफेंस मैकेनिज्म की डेफिनेशन में था अनकॉन्शियसली। हम चाहते तो नहीं है अपने पेशेंट, अपने लव्ड वन की बेइज्जती करना या उसको कुछ बुरे लफ्ज बोलना। हम कभी भी अपने लव्ड वन को कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहते, कभी भी। हम अच्छा, जब जब कोई फैमिली मेंबर ये गुस्से में बोल रहे थे तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तो इसका बेड़ा गर्क हो जाए का क्या मतलब होता है कि तेरा कुछ भी ना रहे, तू खाक हो जाए। बट कभी भी कोई बहन भाई माँ बाप ये नहीं चाहता होता। इट इज योर एंगर, वो करेक्टर डिफेक्ट जो आ गया, एंगर जो आपके अंदर आ गया, आप गुस्से में कई बार ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल जाते हो जिसका एक्चुअली मीनिंग नहीं होता, वो अनकॉन्शियसली आता है ना, वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आता है। बीवियां बीवियां बहुत बार बोल देती हैं मैं तो छੱਡ के चल जाना जे, मैं तो डाइवोर्स दे देना जे। असल में तो वो प्यार कर रही होती हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, वो उनका अपना वो चीज होती है, अनकॉन्शियसली वो यूज करते हैं इस चीज को। हम थर्ड पॉइंट पे आएंगे। जैसे पेशेंट कहते हैं ना पीछे हो जाओ, फिर मैं आपे कर लेना है, तो वाइफ्स कई बार कहती हैं कि मैंने छोड़ के चले जाना है, मैंने तुम्हें छोड़ के चले जाना है, मैंने डाइवोर्स दे देना है। और बहुत बारी जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो वाइफ्स का हमें पता लगता है पैटर्न कि वो 15 दिन के लिए मायके चली जाती हैं, 1 महीने के लिए मायके चली जाती हैं। क्यों? शायद सुधर जाए, वो उनका डिफेंस होता है, शायद सुधर जाए, शायद ठीक हो जाए। 2-2 साल 3-3 साल कई बार हम इकट्ठे नहीं रहते, शायद ठीक हो जाए, वो उनका होता है। अभी आई थिंक लास्ट टाइम आई हैव डिस्कस्ड, ये अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है ना, फिर अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं ये। मैंने बात की थी कि एक वाइफ ने कमरे को ताला लगा दिया और ये बोल दिया, छोटा बच्चा पास में था, कि मैंने सुसाइड कर लेनी है। तो ये क्या है? क्या है ये उनका गलत वे से कोप कर रहे हैं वो सिचुएशन को। सिचुएशन आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है, एडिक्शन आ गई है घर में, पर अगर हम ये बोलेंगे, अच्छा बहुत बारी ना पेरेंट्स भी बोल देते हैं मैं मर जाना, मैं कर लेना अपने आप में कुछ, जे तू ठीक नहीं होया थे, जे तू हुण सुधरिया ना ना ते तू मेरी लाश देखेगा। तो क्या होता है ये, मतलब व्हाट वी डू। फिर हम भी तो ये कहते हैं ना, परे हो जाओ हुण तू अपने तरीके करके देख ले, हुण मैं अपना तरीका करके देखूंगा। तो ये जो दिस इज नॉट वर्किंग, तो ये जो सारे पैटर्न्स हैं ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने लव्ड वन को ठीक करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें ऐसा लगता है कि शायद उसको ब्लेम डालेंगे, उस पे जिम्मेदारी डालेंगे, उसको कसूरवार ठहराएंगे, शायद उसमें शर्म आ जाए, गिल्ट आ जाए और ठीक हो जाए। फिर उसका कंपैरिजन करेंगे तो शायद उसको फील होए मैं पीछे रह गया हूँ और वो मोटिवेट हो जाए। फिर हम उसको बोलते हैं कि हाँ मैं तेनू छड़ के चल जाना है, चले भी जाते हैं, तेनू बेदखल कर देना है। उसके पीछे भी क्या कारण है? शायद वो ठीक हो जाए। फिर जब हम ये सारे यत्न करके बस हो जाती है ना हमारी, थक जाते हैं, फिर एंड में हम बोलते हैं तू तो ठीक होने वाला है ही नहीं। ठीक है ना? मैं हुण होर भी ते चीज़ां ने, मैं वो बच्चे देखा अपने, होर न्याणे देखा, दफा हो जिथे मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, मैं हुण तेनू कुछ कहना ही नहीं। अवॉइड, मतलब बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाते हैं। होती है ऐसे फैमिलीज में जो इतनी देर से खज्जल खुआर हो रहे ਹੁੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਬਲੇਮ ਗੇਮ, ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ, ਗਿਲਟ, ਸ਼ੇਮ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਲਝੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਰਵਾਂ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅੱਜ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਵਡ ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਅਨਹੈਲਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰਨਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੇ सालों तो बढ़ती जा रही है। अब इन चारों का जवाब भी यहाँ पे दिया हुआ है। जो फर्स्ट था ब्लेम का, ब्लेम की बजाय अगर हम ये बोलें शुक्र है परमात्मा डायग्नोसिस तो हो गया ना, लव्ड वन भी ये समझे कि शुक्र है परमात्मा मेरी बीमारी पता तो लग जाए, एंड इवन जो हमारी फैमिलीज हैं वो भी समझें कि शुक्र है परमात्मा डायग्नोसिस तो हो गया ना मेरा। सेकंड में है कि जो कहता है कि मेरे साथ वाले कहाँ चले गए, और हम भी कहते हैं कि तुम्हारे साथ वाले कहाँ चले जाएं, तो उसका ये आंसर है थैंक गॉड आई एम स्टिल अलाइव। जो साथ वाले लोग नशा करते थे उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं लाइफ में, दे आर नो मोर। हमने बहुत बार ही सुना है, इट इज रियली वेरी इट्स पेनफुल टू से दिस थिंग, पर जो साथ वाले फ्रेंड्स थे हमारे बच्चे के, उनमें से कुछ रहे ही नहीं है जिंदगी में। परमात्मा का बहुत शुक्र है, पहली बात मेरा डायग्नोज हो गया, दूसरी बात मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं अपनी लाइफ को अभी भी मैनेज कर सकता हूँ, मुझे कंपेयर नहीं करना बाकी बच्चों के साथ। मुझे पता है कि नशे की बीमारी कितनी खतरनाक है और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। एटलीस्ट हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, एक जगह मिल गई है जिसके साथ अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमें सोल्यूशन तो मिलेगा। थर्ड का है कि प्लीज डोंट लीव मी, ये जो कहता है ना मरीज कि मुझे छोड़ दो मुझे जाने दो मैं अपने आप कर लूंगा, उसमें मरीज को ये समझना है कि मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। मैं किसी भी हालात में अगर आपको अग्रेसिव या अब्यूजिव होता हूँ या कुछ बोलता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाना। और फैमिली को ये समझना है कि मेरा लव्ड वन एक डिजीज में है और मैंने इसको छोड़ना नहीं है। और फोर्थ में क्या है कि मुझे लगातार इसकी मदद करते रहना है, उसको किसी भी हालात में छोड़ना नहीं है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, फ्लिप्स एंड रिलैप्सेस आएंगे, बिहेवियर्स भी आएंगे क्योंकि ये बीमारी है, पर मुझे उसको किसी भी हालात में अकेले नहीं छोड़ना, मुझे उसके साथ रहना है, उसको मदद करनी है। अब हमने ये करा है, एक स्लाइड बनाई है कैसे डिफेंस मैकेनिज्म किस तरह से कैरेक्टर डिफेक्ट में बदलते हैं। सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म है डिनायल। डिनायल की भी हमने पहले बात की थी। डिनायल का मतलब है रिफ्यूजल टू एक्नॉलेज द प्रॉब्लम, मानना ही नहीं। आपने अगर अपने मरीज से पूछा कि बेटा तुम्हारी गाड़ी में लाइटर नहीं होता, लाइटर मेरा तो हो ही नहीं सकता, तो क्या होता है, मैं तो कभी जिंदगी में सिगरेट देखी ही नहीं। सिगरेट, आप सिगरेट की बात कर रहे हो, मैंने तो देखी नहीं। टोटल डिनायल, सीधा ही मना कर देना कि मैंने कभी कुछ किया ही नहीं या मैंने कोई नशा किया ही नहीं। आपको स्मेल आ रही है, मैं तो कुछ नहीं करके आया, आपको ऐसे ही लगी जा रहा है। बॉटल आपने देखी, नहीं नहीं मेरी तो हो ही नहीं सकती, ये तो हो ही नहीं सकता। और उससे कैरेक्टर इफेक्ट कौन सा बनता है? नंबर 1 इज डिसऑनेस्टी, यानी कि हम बेईमानी करना शुरू जाते हैं, झूठ बोलना शुरू जाते हैं, हाइडिंग द ट्रूथ फ्रॉम सेल्फ एंड अदर्स। हम हमेशा अपने लव्ड वंस को कहते हैं एडिक्शन इज सेल्फ डिसेप्टिव। जो नशे की बीमारी है ना, ये खुद फरेबी की बीमारी है। सबसे पहले हम खुद को दगा देते हैं, फरेब करते हैं, धोखा देते हैं, फिर हम किसी और को धोखा देते हैं। तो इसमें डिसऑनेस्टी आ जाती है, ईमानदारी नहीं रहती और हम झूठ बोलने पे उतारू हो जाते हैं। सेकेंड इज इररिस्पॉन्सिबिलिटी। जो डिनायल है वो हमारे अंदर ये वाले 2 कैरेक्टर डिफेक्ट्स लेके आता है, एक झूठ बोलना, दूसरा इररिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी ना लेना। जी। और डिफेंस मैकेनिज्म हमने यहाँ पे ये स्लाइड बनाई है, हमने ये नहीं है कि सिर्फ अपने लव्ड वन में आइडेंटिफाई करने हैं, क्या फैमिलीज में डिनायल चलती है?
जब आपको पहली बारी आपकी किसी सिस्टर ने, आपके किसी रिलेटिव ने बताया तेरे ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨਣ 'ਚ नहीं आंदा, नहीं मेरा बच्चा नहीं हो सकता। तो क्या ये डिनायल फैमिलीज़ में भी चली और उसने आपका नुकसान किया? तो हमने ये डिनायल पैटर्न्स, ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, करैक्टर डिफेक्ट्स है, ਇੱਥੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਹਿਲਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ 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 ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਬਟ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਅਸ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਨਾਇਲ ਪੈਟਰਨ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਨਾਇਲ ਪੈਟਰਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ अच्छा, ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਰੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਬਾਰੇ ये ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? सवाल सबसे है, जब आपको पहली बार ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि आपका बच्चा नशे करता है, कितनी देर लगी थी उसको एक्सेप्ट करने में? सेम डे मान लिया था? सारे बताएंगे प्लीज, कितने दिन लग गए थे उस चीज को हमने समझने में या जज़ब करने में? कितने दिन लग गए थे हमें? सालों साल, महीने, सालों साल। और जो जो डिफेंस बच्चा करता है ना, वही हमने भी कई बारी किए होंगे कि ये शायद हमारे बच्चे को फंसाना चाहता है। सबसे पहली चीज पता है क्या होती है? जब हम डाटा इंटरवेंशन कराते हैं या जब हम फैमिली से हिस्ट्री लेते हैं, तो सबसे पहली चीज जब हमारे पास लेके आते हैं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं था, ਇਹ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਦੀ भी। तो ये हमारी डिनाइल होती है, ये हम तो कह ही नहीं रहे वो गलत है। हम ये जो कहते हैं ना कि ये शराबी है तो ये शराबी कबाबी है, या ये बुरा इंसान है, या ये नशेड़ी है तो ये बुरा इंसान है। बुरे इंसान तो वो है ही नहीं, दे आर वेरी गुड ह्यूमन बींग्स, बट उनको जो परत जम गई है ऊपर एडिक्शन की, उसने अंदर करेक्टर डिफेक्ट्स ले आए हैं। उन करेक्टर डिफेक्ट्स क्यों है? ये डिफेंस मैकेनिज्म क्यों है? ताकि उनकी बीमारी चलती रहे, वो अपनी बीमारी से निकले ना। हम क्यों बार बार ये एम्फेसाइज कर रहे हैं कि उनमें भी आइडेंटिफाई करने हैं, अपने में भी आइडेंटिफाई करने हैं, ताकि हम ये डिफेंस मैकेनिज्म्स को करेक्टर डिफेक्ट में ना बदलने दें। अब ये जो डिनाइल है, डिनाइल की बात जब मैम कह रहे हैं कि माओ ने नहीं माना कि हाँ बच्चा हमारा नशे में आ सकता है, तो कितनी बार उनके अंदर झूठ आया जब बच्चा लेट आया, कितनी बार बाकी घर वालों से झूठ बोला कि हाँ बच्चा लेट आया था, नहीं टाइम से आ गया सी, खा ली सी रोटी। कितनी बार उन्होंने झूठ बोला कि उन्होंने ही पैसे दिए थे बच्चे को, 500 या 1000 या कुछ भी। कितनी बार वो वाली चीज आई हमारे अंदर। और ये बार बार कह रहे हैं ना चाहते हुए, अनकॉन्शियसली हुआ है ये हमारे डिफेंसेस थे जो हमारे करेक्टर डिफेक्ट्स में टर्न हो गए। हम चाहते थोड़ी है, कोई माँ बाप नहीं चाहता उनका बच्चा एडिक्शन में जाए। नेक्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म रैशनलाइजेशन, मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर हार्मफुल बिहेवियर्स, कि ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਸ ਟੂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡਨੈਸ, ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਪਰਸਨਲ ਕੰਫਰਟ ਓਵਰ ਦ ਵੈਲਬੀਂਗ। ਸੋ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਫੈਮਲੀ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੁਪਾਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ? ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ
ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन असाइनिंग पर्सनल फ्लॉज टू अदर्स। गलती हमारी, कमी हमारी, हम दूसरे पे निकाल रहे हैं कि कुछ जो चीजें हमारे में है उसको मानना ना, दलीला देना, मतलब प्रोजेक्ट कर देना, दूसरे ਨੂੰ प्रोजेक्ट कर देना, दूसरी सिचुएशन ਨੂੰ, आउटर चीज़ों ਨੂੰ प्रोजेक्ट कर देना। इसमें करेक्टर डिफेक्ट जो आते हैं वो आते हैं रिजेंटमेंट और डिस्ट्रस्ट। बहुत सालों साल हम कई चीजें, खुंदक खुंदक होती है रिजेंटमेंट, अपने अंदर रखनी और उसको निकालना ना, अपने अंदर ही रखनी कहीं ना कहीं, दूसरों के लिए ग्रजेस रखना डिस्ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट रखना, विश्वास ना होना। अब जब फैमिली मेंबर्स प्रोजेक्ट करते हैं कि ये जो हुआ ये आउटर किसी कारण करके हुआ, जैसे मैंने बोला अभी 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 आपको एग्जाम्पल दी है कि हमारा बच्चा ऐसा है ही नहीं, जो जिस कॉलेज में वो गया था उस कॉलेज में उसको संगति ऐसी मिल गई, वो संगति जो थी उससे बड़े बच्चे थे। कई बार तो हम ऐसे बोल देते हैं, हम खुद अच्छे अच्छे होते हैं, हम अच्छी फैमिली को बिलोंग कर रहे होते हैं, हम बोल देते हैं ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ प्रोवाइड कीतियां, नहीं तो हमारा बच्चा तो था ही नहीं। तो हम प्रोजेक्ट करते हैं और हम फिर क्या करते हैं, ग्रजेस रखते हैं। हमारे पास एक फैमिली आई थी और उसमें क्या था कि जो हमारा लव्ड वन है उसके फ्रेंड के बहन की शादी थी या उसकी खुद की शादी थी, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। तो पेरेंट्स कहते हैं इसकी शादी में नहीं जाने देना। यही है वो बंदा, यही है जो कॉलेज वाला लड़का था जिसकी वजह से हमारा बच्चा नशों में पड़ा। तो क्या हुआ कि प्रोजेक्ट हमने किया उस पे कि उसकी वजह से हमारा बच्चा था, और फिर हमारे अंदर क्या आया, हमारे अंदर ग्रजेस आए, रिजेंटमेंट्स आई कि दुनिया, और आई कुड सी कि फादर कह रहे थे दुनिया से जिथे मर्जी चल जाए साडा मुंडा ओदे विआह च नहीं जान देना। तो वो रिजेंटमेंट्स हमने इतनी बड़ी रखी, हमने उस चीज को रिजॉल्व कराया फिर कि इतनी रिजेंटमेंट थी कि इसके कारण हुआ था, वहां तो नहीं हमने जाने देना, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो दिस इज अगेन अ सेल्फ डिफेंस हमारा जो है कि जो जाके हमारे करेक्टर डिफेक्ट्स में आता है। सो कैरिंग फॉरवर्ड दिस नेक्स्ट ਜਿਹੜਾ डिफेंस मैकेनिज्म है वो है मिनिमाइजेशन, डाउन प्लेइंग द सेवेरिटी ऑफ इश्यूज। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਅਵੋਇਡੈਂਸ, ਇਗਨੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਂਡ ਲੈਕ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਇਨਵੇਡਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫॉर ਐਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਮਿਨੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਵਰਡ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈਫਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਛੋਟਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਛੋਟਾ ਦਰਸਾਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹਾਈਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। हमारे पास कई बारी फैमिलीज आके कहती है हमारा तो सिर्फ शराब ही पीता था, ये तो नहीं होएगा कि ये चिट्टे वालों के बीच में बैठ के वो भी सीख लेगा, ये वो वाली चीजें सीख लेगा, वो वाली हैबिट सीख लेगा। तो ये मिनिमाइज करना होता है इस चीज को, हमें ये समझना है कि हमें ऐसा कुछ नहीं अपने डिफेंसेस लेके आने कि हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट ही ना होए। हमारे पास कई बार हमारे लव्ड वंस कहते हैं कि मेरी तो प्रॉब्लम इन्नी नहीं है कि मेरे तो वड्डी वड्डी प्रॉब्लम्स वाले बैठे हुए हैं, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, कोई गल नहीं, हो गया सब कुछ ठीक। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा डिफेंस कहाँ पे यूज कर रहा है ਹੈ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਲਾਉਂਗਾ। तो ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ,
ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਾਂਗੇ। और हम डर भी जाते हैं, फिर ये भी कहते हैं कि अभी तो मैं थोड़ा करता था, मैं आपको ज्यादा करके बताऊंगा, 3 क्या 6 महीने रख लो, कोई बात नहीं, आके बताऊंगा आपके। फिर हम डर जाते हैं और हमसे उस फेयर के कारण गलत फैसले हो जाते हैं, हम इमोशनली वीक हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो नेक्स्ट रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब दबा के रखना, अपनी पेनफुल मेमोरीज को, अपनी पेन को दबा के रखना, उसको एक्सप्रेस ही ना कर पाना। और इसका जो करेक्टर इफेक्ट आता है इसमें, वो आता है इमोशनल नमनेस और पैसिव अग्रेसिवनेस, कि हम अवॉइड करते हैं किसी के साथ कनेक्शन, और अपनी जो डायरेक्टली अपनी जो एग्रेशन है उसको हम एक्सप्रेस ही नहीं करते। अब आप बताइए कि जो इंसान कि इतना ज्यादा नम हो गया है, चुप हो गया, उसने अपनी इमोशंस दबा के ही रख ली हैं, एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा, तो वो क्या होएगा फिर अल्टीमेटली क्या होएगा, वो फटेगा। प्रेशर कुकर की तरह, कुकर की सीटी नहीं बजती रहेगी तो फिर क्या होएगा, क्या होएगा, फट फट जाएगा। तो ऐसे ये जो डिफेंसेस हैं, हमें उसको अंडरस्टैंड करना है। इमोशनल नमनेस हो जाती है, कनेक्टेड नहीं रहना, बात नहीं करना। अच्छा, सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है? 2 चीजें होती हैं जब एग्रेशन होती है, यहाँ होता है साइलेंस, यहाँ होती है वॉयलेंस। जब वॉयलेंस होती है तब तो बंदा गाली गलौज करके, गुस्सा गुस्सा करके निकाल देता है, और दूसरा होता है चुप बट जाना, स्टोन वॉलिंग कर देना, पैसिव अग्रेशन। हमें वो भी नहीं बर्दाश्त होता ना, हमें होता है ये चुप क्यों है, ये बोल क्यों नहीं रहा। वो बोल इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसकी ये डिफेंस है, उसने सप्रेस कर ली है अपनी वो वाली इमोशंस को, और वो बोल नहीं रहा। लेकिन जिस दिन वो बोलेगा फिर वो बम्बार्डमेंट ही होएगी, और वो उसकी चैनलाइजेशन जब अच्छी नहीं होएगी तो क्या होएगा, हम किसका सहारा लेंगे, ड्रग्स का, एडिक्शन का। अब हमारे लव्ड वंस क्या करते हैं, जो इनकी डिफेंस मैकेनिज्म्स होती हैं, या इनकी जो इनको स्ट्रेस हैंडल नहीं करना आता लाइफ में, तो ये क्विक फिक्स चाहते हैं कि फटाफट से जल्दी से हमें कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाए। तो उनके बस में नहीं होता, और उनका जल्दी जल्दी वाला सोल्यूशन होता है कि मैं जो इतनी अनकंफर्टेबल फीलिंग मुझे हो रही है ना, मुझे जल्दी से इसका छुटकारा मिल जाए, मुझे जल्दी से या तो कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन मिल जाए या फिर मुझे कोई नशा मिल जाए, मैं इस अनकंफर्टेबल फीलिंग को सह नहीं सकता। और जब फैमिलीज होती हैं उनके अंदर जो क्विक फिक्स होता है वो क्या होता है, छेती ठीक हो जाए, इन्हें जल्दी ठीक कर दो, इन्हें जल्दी ठीक कर दो, फिर ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣਾ, इन्हें जल्दी ठीक कर दो, फिर ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ करना है। तो क्विक फिक्स नहीं है हमारे इस ट्रीटमेंट में, टाइम लगना है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में से निकल कर जाएंगे और तब हम रिकवरी की तरफ जाएंगे। हमारा डिनायल से एक्सेप्टेंस का सफर थोड़ा लंबा है, डिनायल आएगी तभी एक्सेप्टेंस आएगी, डिनायल की स्टेजेस में से निकलेंगे तभी एक्सेप्टेंस आएगी। और ये सफर हमारा जब चलेगा तो हमें साथ चाहिए, हमें आपका साथ भी चाहिए, हमें इनका साथ भी चाहिए, ताकि हम रिकवरी की तरफ जा सकें। और साथ ऐसे चाहिए कि वी वांट फैमिलीज टू आल्सो पार्टिसिपेट इक्वली इन आवर मीटिंग्स, इन आवर थेरेपीज। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਪਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਅਨਹੈਲਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟਸ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸੋ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ। और 2 चीजें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक हमें बीमारी की इंसाइट होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लव्ड वन का डायग्नोसिस क्या है, हम किस चीज के लिए उसका इलाज कर रहे हैं, और दूसरा आपका डाटा इंटरवेंशन।
आपके डाटा देखो बहुत पेनफुल होता है ये एक्सेप्ट करना। चलो ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि नशा करता है, लेकिन ये एक्सेप्ट करना कि उसको कोमॉर्बिड इलनेस है या उसको कोई साइकोटिक बिहेवियर है या कोई और डिजीज साथ में लग गई है, ये इनिशियली एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये भी हमारी डिनायल ही है। और दूसरा, जो आपने डाटा इंटरवेंशन लिखना होता है वो बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि हम भी उस मेमोरी लेन में चले जाते हैं, हमें वो दोबारा सारी मेमोरीज रिकलेक्ट करनी पड़ती है। हम करना नहीं चाहते किसी ना किसी तरीके से। दूसरा, हमारा डर होता है कि हमने अगर ये डाटा प्रेजेंट कर दिया तो हमारा लव्ड वन ऑलरेडी जो हमसे नाराज है और नाराज ना हो जाए। तो आपको बता दें ये उनके ट्रीटमेंट का एक एसेंशियल पार्ट है, उसके बिना ट्रीटमेंट हो नहीं सकता। तो हमें आपकी सपोर्ट इन दोनों चीजों के लिए चाहिए ताकि हम इनको आगे और इम्प्रूव कर सके। किसी का कोई सवाल? जी मेरा क्वेश्चन नहीं है लेकिन मेरी शेयरिंग है। जी जी मैम, श्योर। लाइक आपने जैसे डिनायल की बात की कि डिनायल जो है वो बहुत स्ट्रांग रहता है फैमिलीज का भी। मैं पर्सनल शेयरिंग करना चाहती हूँ कि मेरे लव्ड वन को जो भी प्रॉब्लम थी मेंटल डिसऑर्डर की बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस, तो वो मेंटल डिसऑर्डर की वो प्रॉब्लम को बहुत देर मेरा डिनायल रहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता, इसको ऐसा ना हो। कुछ उसके पॉजिटिव सिम्टम्स देखने हैं तो मुझे लगना कि नहीं ये ठीक है, अब ये आगे और ऐसा नहीं होगा, अब ये ठीक रहेगा। ये डिनायल मेरा कभी नहीं टूटा, यहाँ पे आके टूटा है। जब मैंने मुझे 2.5 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पे, जब मैंने अपने पेशेंट को, लव्ड वन बोलूँगी, पेशेंट नहीं बोलूँगी, उसको यहाँ पे भेजा, एडमिट करवाया, और मैंने कंटिन्यूअस यहाँ पे बैठ के जो सीखा, तो मेरा उस डिनायल टूटा कि हाँ, वाक़ई वो बीमार है, उसको डिज़ीज़ है और उसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने ये शेयरिंग वहाँ पे भी की थी इवनिंग सेशन में, 1-2 दिन पहले मैं मोहित सर से मिलने आई थी डाटा इंटरवेंशन के लिए। तो ये 2 लाइनें सडनली मेरे माइंड में आई और मैं उसको लिख के दे के गई, और मैंने उसको बोला कि आई लव यू माय सन, बट आई केप्ट लविंग योर डिजीज़ आल्सो। आई Very true. स्टिल लव यू, but cannot love your disease anymore. Yeah, it is really true, ma'am, and it is very heartbreaking for a parent to uh, accept this thing that our patient has got some problem, right? जैसे आप बोल रहे हो ना, एक्चुअली अगर हमारी किसी भी लव्ड वन को कैंसर निकल जाए, हमें वो भी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हम बहुत ज्यादा टूट जाते हैं कि व्हाट नाउ। और स्पेशली जब मेंटल इलनेस होती है, साइकोलॉजिकल इलनेस होती है, हम कहीं ना कहीं, ये बहुत ही पेनफुल है कहते हुए कि हम बहुत लेट हो जाते हैं, तब तक उसके सिम्टम्स और बढ़ चुके होते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारा प्यार होता है, हमारी डिनायल होती है जो एक्सेप्ट नहीं करने देती इस चीज को। और इट इज रियली देयर बिकॉज सोशल स्टिग्मा इतना ज्यादा है इस मेंटल हेल्थ को लेके। अभी भी इतना सोशल स्टिग्मा है कि हमारे बच्चे को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तभी मैंने आपको बीच में बोला था कि एक 4 साल के बच्चे से लेके एक 70 साल के इंसान को भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आज सर ने बहुत अच्छी शेयरिंग की थी मॉर्निंग मीटिंग में, अगर किसी ने सुना हो तो, कि साइकियाट्रिस्ट डू हैव प्रॉब्लम। एक साइकियाट्रिस्ट को भी, एक साइकोलॉजिस्ट को भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बट उसमें चाहिए क्या? अवेयरनेस, इनसाइट। सर ने आज डिस्कस किया था कि कुछ डॉक्टर्स ने अपने फेलो मेट्स को ये बोला कि कभी जिंदगी में अगर हमें प्रॉब्लम हुई ना, तो हम पे एक्सपेरिमेंट मत करना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो मेडिसिन होगी वो सीधी शुरू कर देना, ये मैं कंसेंट लिख के देता हूँ। ये है अवेयरनेस। जो अभी आपको बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट आपको अपने पेशेंट की डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, डायग्नोज पता होना चाहिए। ये डायग्नोज इसलिए नहीं है कि हमने स्टिग्मेटाइज कर देना है पेशेंट को, ये डायग्नोज इसलिए नहीं है कि हमने
अपने लव्ड वन को एक सिक रोल दे देना है कि भाई तू बीमार है, तू बाइपोलर है, तू स्किज़ोफ्रेनिक है या तू स्किज़ोअफेक्टिव है। ये डायग्नोज इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि सेल्फ अवेयरनेस आ जाए, इनसाइट टुवर्ड्स द डिजीज आ जाए कि इस डिजीज में ये इतने 6-7 सिम्टम्स होते हैं, मेरी बीमारी के क्या थे, कितने थे, अब वो ठीक हो गए, अब रह कितने गए हैं, मैंने किस पे काम करना है। तो जो डायग्नोज होता है, हम ये इट इज रियली हार्ट ब्रेकिंग हमारे लिए भी ना। कई बारी हमें, आज सर ने मॉर्निंग मीटिंग में भी शेयर किया था, हमें फैमिलीज स्पेशली जो नर्सिंग केयर में होती हैं या जो डॉक्टर्स फील्ड में होती हैं, वो हमें कुछ ऐसी दवाइयाँ जो हमारे लव्ड वंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो देने ही नहीं देते। हमारे सामने कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो शायद 5 साल पहले ठीक हो गए होते जब हमारी मर्जी चलने देती। बहुत बहुत दुख होता है हमें इस चीज के लिए। आज भी 5 साल बाद वो पेशेंट बार बार लैप्स हो रहा है, बार बार उसके सिम्टम्स आ रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि पेरेंट्स ने हमें अलाउ ही नहीं किया। नहीं नहीं, ये दवाई नहीं देनी, ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग दवाई है, ये इंजेक्शन नहीं ਇਹ देना। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਟਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ कोई नहीं जे देनी है, ਤੁਸੀਂ थेरेपी करो, ਤੁਸੀਂ काउंसलिंग करो। तो उसके लिए जवाब है, जो बैठे हैं वो भी, जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं उनके लिए भी, जब हमारे ब्रेन के न्यूरोकेमिकल चेंजेस आए हैं और उन चेंजेस में हमने जब कुछ दवाइयां दी हैं उसका इफेक्ट नहीं आ रहा, तो हमें उसकी नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करनी ही पड़ेगी, उसकी जान बचाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। तो ये जो स्टिग्मा है, पहले हम इसको ठीक करें, इसको अपने से हटाएं। मुझे जी लगता है कि मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग तब था जब तक मेरा डिनायल था, जी लेकिन अब जैसे मेरा डिनायल टूट रहा है, अब मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग नहीं है। अब मुझे लगता है कि वो ट्रीटमेंट में आएगा और ठीक होके यहाँ से जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। और क्योंकि दिस इज वेरी करेजियस ऑफ यू कि आपने ये शेयरिंग करी। क्योंकि अब क्या है, हार्ट ब्रेकिंग नहीं है ना, अब आपको पर्पस मिल गया। अब आपको पता है कि अब ये डिजीज है, आपने भी मान लिया। यू आर नॉट फाइटिंग विद इन एनी मोर। आप वो लड़ाई, कहते हैं इंसान जो अंदर की लड़ाई होती है ना, उससे सबसे ज्यादा हारता है। बाहर की लड़ाइयां तो हम कर लेते हैं। सो ये जो है, ये बहुत करेज वाली बात है। आपने एडमिट किया, आप डिनायल पे काम किया आपने। नाउ यू हैव, बिकॉज आपको पर्पस मिल गया, मेरा बच्चा बीमार है, मैंने उसका साथ देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो आपको इतना सपोर्ट ग्रुप है आपके पास, तो वी विल डेफिनेटली डू इट। एनीबडी एल्स, किसी की कोई शेयरिंग? और इसको ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस कहते हैं। और टोटल सरेंडर जो है ना, वही ट्रीटमेंट में आपको हेल्प करेगा। एंड वी हैव सरेंडर टोटल टू द ट्रीटमेंट। जी जी Thank जी, you. थैंक यू सो मच। सरेंडर, फेथ एंड ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस। जिस दिन, अच्छा देखो, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अगर आपको पता ही नहीं है क्या है, तो सोल्यूशन कहाँ से ढूंढेंगे हम? आप जो बात कर रहे हैं कि मैं डिनायल में थी, तो उस प्रॉब्लम को मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मेरी जो कोपिंग मैकेनिज्म थी, मेरे डिफेंसेस थे, वो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करने दे रहे थे उस चीज को। मैंने जब एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो मैं सोल्यूशन कहाँ से ढूंढूंगा उस चीज का? जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया और ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर हमारे अंदर होप आती है, ट्रस्ट आता है और हम सरेंडर करते हैं।